Hello. First of all, a very good afternoon to all. I am Sakib Anwar. This is our second class of graphic design. Today we will cover the three common visual elements, that is layout, typography and text or text and images. And the four next topic will be the four crucial principles of graphic design. And we also cover the basic steps involved in the graphic design. Before moving further, there are some important announcements that you have to keep in mind. Some assignment will be given to you between the session. You have to complete them and upload it on Google Drive. After completing all the training sessions, there will be a final MCQ test, qualifying test for training certificate. After this 1 month training sessions, we will provide you 1 month internship as we already told. We will also provide job opportunity to the person who are active in all the sessions and complete all the assignments properly and qualify the final exam and whose performance is excellent. So be regular and active in all the sessions. And if you are looking for job opportunity, then this opportunity can become a life-changing opportunity for you. And there are also some general instructions that you have to follow. Make sure that your mic and camera should be off during whole session. If you will have any queries, then you can ask. Be punctual, log in on time, set up your space, make sure it's quiet and uninterrupted. Recorded session recorded session will be provided on our YouTube handle and attendance will be taken in the last 5 minutes. Before moving further and starts our session, we will wait for 2 minutes to join others. Our last session we learned the definition of graphic design, what a graphic designer develops, either it is magazines, newspaper, multimedia projects, promotional displays, etc. And we also learned the most important, the component or elements of graphic design. That is line, shape, color, space, texture, smile, scale, typography, etc. So that's all what we have learned in our last session. So let's start the today's session. Let me share the screen. Screen is visible to all. Please confirm. So let's start with the our first topic, the common visual elements. The basic three common visual elements, that is first one would be layout, second one would be typography or text, and third one is images or pictures. जो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक रहेगा, तो बेसिक कॉमन विजुअल एलिमेंट्स, वो हमारा ग्राफिक डिजाइन का एलिमेंट था जो साथ थे हमारे, ये हमारे विजुअल एलिमेंट्स का कॉमन विजुअल जो हम मैसेज क्रिएट कर रहे हैं उनके एलिमेंट्स है, जो बेसिक हम तीन चीज़ों को ऐड करके या उनको कंबाइन करके हम विजुअल मैसेज क्रिएट करते हैं, उसके एलिमेंट्स है जो हमारे तीन एलिमेंट्स हो गए ये ग्राफिक, टेक्स्ट, लेआउट एंड इमेजेस. So first would be layout. Layout is the arrangement of type and graphics on a printed publication, presentation or website. Simply a graphic layout. Basically, it is the arrangement of elements or graphics on our project or what we have to design. In a simple words, it can be defined as a plan or design of something that is to be laid out or the act of laying out. That is making plans for something. तो बेसिकली हमारा लेआउट एक हमारा अरेंजमेंट रहेगा, जो बेसिकली अरेंजमेंट जो हम अलग अलग जो हमारे एलिमेंट्स है उनको हम एक साथ क्रिएट करके जो हमारा ओवरऑल डिजाइन निकल के आएगा कि हम कौन से एलिमेंट कहाँ फिक्स करेंगे, तो जो हमारा
लुक वाइज अच्छा होगा, जो उसकी लुक्स रहेंगी, एस्थेटिक लुक आना चाहिए, जो हमारे डिजायर्ड आउटपुट है वो हमें मिलना चाहिए, जो हमें चाहिए वो लुक आनी चाहिए, या फिर जो व्यूवर्स को अटेंशन, व्यूवर्स के माइंड को कैच करे, कि मतलब जो हम क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि डिजाइन हमने या फिर होल्डिंग्स बना लिए, रोड साइड लगा दी, लेकिन किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो पूरा डिपेंड करता है लेआउट पे, कि हम लेआउट के अंदर जो एलिमेंट्स है उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से कर रहे हैं, जो हमें जो डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, या फिर हमें जो हमारा मोटो या ऑब्जेक्टिव है कि इस डिजाइन से हमें इतने वो चाहिए, आउटपुट चाहिए, कि इतने हमें व्यूवर्स का अटेंशन चाहिए, इतने हमारे प्लान्स है जो वो वर्क करने चाहिए, कि इतने व्यूवर्स हमारे पास आए या इतने कस्टमर्स हमारे पास आए इस डिजाइन को या इस लेआउट को देखते हुए। So basically layout is the arrangement of type and graphics on a printed publication, presentation or website. A good layout should serve the purpose intended by the designer organizer. A good layout should serve the purpose, जो हमारा layout होना चाहिए वो पर्पस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब जो हम चाहते हैं वो चीज होनी चाहिए, ना कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उससे काफी दूर हो। एंड टेंडेड बाय द डिजाइनर, टेंडेड का मतलब होता है, टेंडेंसी मीन टेंडेंसी टू डू समथिंग, जो हम करना चाह रहे हैं या हमें ये चीज हमें करनी है। तो टेंडेंसी बाय द डिजाइनर ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अ विजुअल पाथ। तो वही जो इंफॉर्मेशन और ग्राफिक्स है उसको हमने एक साथ ऑर्गेनाइज करके, तो हमारा लेआउट वही है जो हम डिजाइनर जो चाह रहा है, इंफॉर्मेशन और ग्राफिक्स है उनको एक साथ इकट्ठा करके या ऑर्गेनाइज करके, जो हमें विजुअल पार्ट चाहिए, हम एक विजुअल मैसेज क्रिएट करना है। सिंपली अ लेआउट इज द बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स और ग्राफिक्स इन in simple words, it can be defined as a plan or to design or something that is to be layout, और देयर इज नो वन राइट टू क्रिएट, हम अपने जो डिजाइन है वो किसी भी तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, कोई एग्जैक्ट तरीका नहीं है या वे नहीं है टू क्रिएट अ गुड लेआउट, देयर इज नो वन राइट वे। ये कुछ लेआउट के एग्जाम्पल्स है जहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल, जैसे ये हमने पूरा दो दो तीन मल्टीपल कलर्स का यूज करके एक डिजाइन क्रिएट किया है, एक सॉफ्ट टोन में है, एक हार्ड टोन में है, एक डार्क है, फिर हमने प्रॉपर व्हाइटिश एरिया लिया है जो टू रिटर्न टू राइट द इंफॉर्मेशन। सेम एग्जैक्ट ये रहा कुछ एग्जाम्पल। नेक्स्ट द जनरल गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव लेआउट, जो हम इफेक्ट लेआउट बना रहे हैं, मतलब लेआउट तो किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन जो जिसकी हमें नीड है, मतलब जो हम करना चाह रहे हैं, जो इफेक्टिव होना चाहिए कि उसका आउटपुट हमें ज्यादा से ज्यादा मिल सके। तो फर्स्ट वन विल बी डिटरमाइन द पर्पस ऑफ योर पब्लिकेशन, प्रेजेंटेशन और वेबसाइट बिफोर यू बिगिन द लेआउट। जो हम लेआउट बनाने से पहले हमें और उसका ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, हम या किस पर्पस के लिए बना रहे हैं, हमारे जो पब्लिकेशन है या प्रेजेंटेशन है या फिर हमारा जो वेबसाइट है उसे हम किस लिए क्रिएट कर रहे हैं, किस पर्पस से क्रिएट कर रहे हैं, उसको हमें जानना है। सेकंड वुड बी एस्टैब्लिश द प्राइमरी मैसेज यू वांट टू प्रेजेंट एंड प्लान योर लेआउट अराउंड इट। जो हमारा प्राइमरी मैसेज है कि हम लिखना क्या चाह रहे हैं, फर्स्ट वन हमारा जो हेडलाइंस होगा वो क्या वो क्या होगा, या फिर वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, हमें उसे प्लान करना है, उसके अकॉर्डिंग को लेआउट को प्लान करना है। चूज एन अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ मीडिया, हमें मीडिया को भी जानना है कि हम किसके लिए बना रहे हैं, या फिर हम पहले वेब पेज बना रहे हैं, या हमारे प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, या हमारे प्रिंटेड बुक्स हो गई, न्यूज लेटर हो गई, या फिर हमारा ब्रोचर हो गया, कि हम किस तरीके का मीडिया बनाना चाह रहे हो और उनका साइज क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग हम लेआउट को डिजाइन करेंगे। द नेक्स्ट आइडेंटिफाई द target audience, then write and design the publication presentation और website keeping the audience in mind। हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव रहता है किसी भी डिजाइन का या पब्लिकेशन का, कि हम वो एडवर्टाइज कर रहे हैं, उसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो हमें वो चीज, हमें टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करनी है कि हम ये चीज कौन सा ऑडियंस इसके पास आएगा, या मतलब कौन से ऑडियंस को ये अट्रैक्ट करेगा, जिसकी इसमें इंटरेस्ट है वही आना चाहिए। तो हमें टारगेट ऑडियंस देखना है कि हमें किस तरीके का ऑडियंस इसके लिए जरूरी होगा। कंसीडर द इंटरेस्ट, रीडिंग लेवल एंड बैकग्राउंड, फिर उनका इंटरेस्ट की ऑडियंस किस तरीके का प्रोजेक्ट चाहता है,
या फिर हम बैनर लगा रहे हैं या होल्डिंग्स लगा रहे हैं, एडवर्टीजमेंट हमने क्रिएट किया, तो उसमें हमारा रिटर्न कंटेंट कितना होना चाहिए, मतलब इतना भी नहीं कि पूरा ही पूरा भर दे कि जो रीडर वो पढ़ना ही ना चाहे, मतलब ज्यादा कंटेंट देख के ऐसे करेगा अरे यार ये तो छोड़ो, पढ़ने की जरूरत नहीं है, फालतू का ही होगा, या फिर हमने बैकग्राउंड देखना है। सेकंड वन वुड बी टाइपोग्राफी और टेक्स्ट। सिंपली टाइपोग्राफी इज द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट, जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, ये हमारा एलिमेंट भी था उसका, ग्राफिक डिजाइन का भी एलिमेंट है टाइपोग्राफी और टेक्स्ट। Simply, basically, it is the art and technique of arranging the typed information to make written language. बेसिकली हमारा टाइपोग्राफी, हम जो लिखना चाह रहे हैं, जो हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं, टाइपिंग यूज कर रहे हैं रिटर्न वर्क के लिए, वो उसका अरेंजमेंट क्या है। Typography is the appearance of text. It's one of the most important features of every composition, both in the digital and physical worlds. The type choice can make or break every design. It helps to set the mood and emotion of any text and has a huge impact. जो हम टाइपोग्राफी टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली हम उसमें टाइप्स, उसमें हम कंपोजिशन देखेंगे कि क्या हमारा मैच कर रहा है, कंपोजिशन क्या है, वर्ड्स की कंपोजिशन क्या है, कंटेंट कितना है, चाहे हमारा वो डिजिटल कंटेंट हो या फिजिकल कंटेंट हो, मतलब हमें डिजिटली डिजाइन करना हो या फिर फिजिकली हमें प्रेजेंटेशन या फिर बैनर में कहीं और लगाना हो उसके लिए। तो टाइपोग्राफी का मतलब ही यही होता है। बेसिकली अगर हम देखें कि टाइपोग्राफी का डेफिनेशन क्या है, तो बेसिकली इट इज द आर्ट एंड टेक्निक ऑफ अरेंजिंग द टाइप्ड इंफॉर्मेशन। जो हमें चाहिए टाइप्ड इंफॉर्मेशन, उसके अरेंजमेंट किस तरीके से हम कर सकते हैं टू मेक द रिटर्न लैंग्वेज। जो मतलब हमने अरेंजमेंट्स किया, जो हम टाइपिंग कर रहे हैं उसे पढ़ पाना आसान है कि नहीं है। इसकी डेफिनेशन ये है, द आर्ट ऑफ अरेंजिंग रिटन लेटर्स इनटू विजुअली अपीलिंग। जो आर्ट ऑफ अरेंजिंग रिटन लेटर्स, जो हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं, वो विजुअली कैसे अपील कर रहे हैं। अपीलिंग इन द अपीलिंग मींस टू अट्रैक्ट और इंटरेस्टिंग, कितना अट्रैक्टिव है या फिर कितना इंटरेस्टिंग है। अपीलिंग स्टैंड्स फॉर अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग। एंड द लेजिबल टेक्स्ट, लेजिबल मींस इजी टू अंडरस्टैंड, कि कितना क्लियर है, कि कितना पढ़ पाना आसान है, क्लियर इनफ टू बी रीड इजीली। That is called the typography. The word is derived from Greek word typos, that means forms, and the graphein, which means to write. ये सिंपल एक एग्जांपल है हमारा, ये फॉन्ट है हमारा कॉर्बेल। कॉर्बेल नॉर्मल हो गया, कॉर्बेल लाइट, कॉर्बेल बोल्ड, फिर इसमें इटैलिक में तीन तरीके से हो गए, कॉर्बेल इटैलिक, कॉर्बेल लाइट इटैलिक एंड कॉर्बेल बोल्ड इटैलिक। मतलब सारे टाइपोग्राफी के ही है, वर्ड्स एक ही है, मतलब उसकी फॉर्म्स कैसे ले रहे हैं, मतलब किस तरीके से हम उसको डिजाइन कर रहे हैं, किस तरीके से वर्ड्स को हम एग्जैक्ट लोकेट कर रहे हैं कोई भी डिजाइन में, या फिर पर्पस जो हमारा डिजाइनिंग कर रहे हैं या फिर प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो वर्ड्स को हम किस फॉन्ट में यूज कर रहे हैं और कितना बड़ा साइज है वो यूज कर रहे हैं। इट मे बी लाइट और इट मे बी बोल्ड, एंड टू डिजाइनिंग के लिए हम इटैलिक वर्ड्स यूज कर रहे हैं। टिप्स टू मेक योर टेक्स्ट एक्सप्रेसिव, कि जो हम टाइप कर रहे हैं उसको हम किस तरीके से मोर एक्सप्रेसिव कर सकते हैं, कि हमें कम वर्ड से लिखने हैं। जाहिर सी बात है कि हम पीपीटी बना रहे हैं तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तो हम एक जगह दे नहीं सकते हैं, तो हमें जो कम वर्ड्स को यूज करके, हम जो हम बैनर बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन पे हमने रिटर्न कंटेंट लिया है, उसको हम किस तरीके से मोर एक्सप्रेसिव कर सकते हैं, मोर इफेक्टिव वे में हम किस तरीके से यूज करते हैं। इंस्टेंट ऑफ स्ट्रेचिंग योर फॉन्ट एंड डिस्टोरिंग इट, एज अ रिजल्ट चूज टॉलर और वाइडर फॉन्ट। जो हमने वर्ड फॉन्ट्स ले रहे हैं, फॉन्ट्स हमको अगर ज्यादा बड़ा रखना है तो हम स्ट्रेच कर रहे हैं, तो उसकी जो जो वर्ड्स है उसको स्ट्रेच करने पे जो उसका वो रहेगा, क्लैरिटी रहेगी वो कम हो जाएगी, या फिर डिस्टोर कर में छोटा कर रहे हैं तो वो भी अजीब सा लगेगा, तो जिसका रिजल्ट ये होगा कि वो थोड़ा देखने में इम्प्रेसिव सा नहीं लगेगा, एक्सप्रेसिव नहीं लगेगा। तो इसके जगह हम जो हमारे फॉन्ट्स है, जो टॉलर्स है, या फिर उनकी साइज साइज बड़ी है या फिर चौड़ी फॉन्ट्स होती है, जो हेडिंग्स के लिए हम यूज कर सकते हैं, उनको यूज करना है। यूज कलर साइकोलॉजी, कलर साइकोलॉजी हमें पता होनी चाहिए, जो लास्ट टाइम मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि 10 जो हमारा कलर्स होते हैं वो किस किस चीज के लिए यूज करते हैं।
use color psychology and research positively, matching shades and tones to choose your right colors. जो हम कलर्स यूज कर रहे हैं तो उसका टोन क्या है या फिर शेड्स क्या है। शेड्स का मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, शेड्स वो कलर होता है जो दैट कलर्स दैट मिक्स विद द ब्लैक, एंड द टोन्स स्टैंड्स फॉर द कलर मिक्स विद द ग्रे टू चूज योर राइट कलर। तो हम कौन से कलर्स को यूज कर रहे हैं और कितना उसका शेड या फिर टोन है जो हम फॉन्ट्स को यूज कर रहे हैं उसके अंदर की कलरिंग के लिए क्या है। लिमिट योर फॉन्ट्स, चूज मोर देन टू और फॉन्ट्स में, जैसे अगर हम कोई भी कंटेंट बना रहे हैं तो जैसे सिंपल मैं इस पीपीटी का एग्जांपल दूं तो मैंने सिर्फ दो फॉन्ट को यूज किया है, एक हेडिंग के लिए और एक कंटेंट के लिए। अगर इससे ज्यादा मैं करूंगा तो वो बहुत ही अजीब लगेगा, बहुत ही वर्बल सा लगेगा। सिंपल इसका एग्जांपल ये रहा कि जो हमने टेक्स्ट लिया इसके बीच में प्रॉपर स्पेसिंग नहीं है। जो हमने हेडलाइंस ले लिया लेकिन इसको अगर जब हमने बोल्ड लिया तो प्रॉपर इसकी स्पेसिंग नहीं है, या फिर जो नीचे आपको शायद दिख भी नहीं रहा होगा कि हमने कलर ही ऐसा लिया जो हमें विजिबल ही ना। ये टाइपोग्राफी के एग्जांपल हो गए कि इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो थर्ड जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा एलिमेंट, इमेजेस। इमेजेस मतलब जो पिक्चर्स हम यूज करते हैं। Designers develop images to represent the ideas to their clients to want to communicate. Images can be incredibly powerful and compelling tools of communication, conveying not only information but also moods and emotions. जो डिजाइनर्स हो, जो हम कोई भी डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं या हम क्रिएटिव रेडी कर रहे हैं उसके अंदर हमें इमेजेस लेने हैं। तो जो हम इमेज ले रहे हैं वो प्रॉपर हमारी इंफॉर्मेशन हो, मतलब कोई अगर हमें कुछ दिखाना है जैसे रेड पेपर या फिर चिली पेपर यूज कर रहे हैं तो चिली पेपर का एग्जाम वही होता है कि वो हॉट है, मतलब चिल्ली है, तीखा है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हमें ऐसे इमेज लेना है जो कुछ इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सके, मतलब सामने वाले को देख के लगे कि ये इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है सामने से। जैसे अगर रेड कलर है तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपल अगर हम इमेज की डेफिनेशन बोले, अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग दैट इज कॉल्ड इमेज। और जो हमारा इमेज रहेगा नॉट, ये सिर्फ हमें नॉट नॉट ओनली इंफॉर्मेशन देगा बट ऑल्सो हमारे मूड्स और इमोशंस को भी ये हैंडल करेगा कि क्या कहना चाह रहे हो, उसके मूड्स क्या और फिर इमोशन क्या है, किस सिचुएशन में ये वर्ड्स निकल रहे हैं, या फिर जो इमेज हमारा किस सिचुएशन में है। फॉर एन एग्जाम्पल, यू नो दैट अ चिली पेपर इज हॉट एंड दिस नॉलेज कॉम्बिनेशन विद द इमेज क्रिएट्स एज अ विजुअल पन। इन केस ऑफ इमेज बेस्ड डिजाइन, द डिजाइन मस्ट कैरी एंटायर मैसेज। वही एग्जैक्टली जो मैंने बोला कि जो हम इमेज ले रहे हैं वो हमें एक मैसेज क्रिएट करके दे, ना कि हमने किसी भी इमेज को कर दिया कि जगह बच रही है तो कोई भी इमेज हमने लगा दिया डिजाइन में या फिर क्रिएटिव बनाने में। कि मतलब जो हम इमेज ले रहे हैं वो एक एग्जैक्ट मैसेज को कन्वे करे या फिर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे। देयर इज अ फ्यू एंड वर्ड्स टू हेल्प these images may be photographic, painted, draw or graphically rendered in many, मतलब इमेज हमारे किसी भी तरीके से हो सकते हैं, फोटोज हो सकते हैं या फिर हमारी पेंटिंग्स हो सकती है, ड्राइंग हो सकती है या फिर हमने कुछ ग्राफिकली रेंडर करके बना दिया, ग्राफिकली हमने रेडी कर दिया, वो हो सकता है। सिंपल जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे एक क्रिएटिव ये रहा, या फिर हम जो कर रहे हैं पोस्टर कह सकते हैं कि यहाँ पे एक मैसेज दिखा रहा है। जैसे इमेज, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पुलिस एंड द नॉर्मल पीपल। यहाँ पे नॉर्मल कुछ वो कर रहे हैं, किसी ने धरना या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है जो पुलिस और नॉर्मल पीपल के बीच में हो रहा है। या फिर जैसे ये हमारे कुछ पैम्पलेट्स है या टेम्पलेट्स है जो एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं। जैसे पोर्ट्रेट सेल्फीज की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे एक सेल्फीज लगा दी, या फिर कॉन्सेंट्रेट की बात कर रहे हैं कॉन्क्रीट की तो कॉन्क्रीट की डिजाइन दे दी कि इस तरीके से डिजाइन हो सकते हैं। लैंडिंग पेज दिखा दे कि जो हमारा फ्रंट पेज है लैंडिंग पेज रहेगा वो कैसा रहेगा। उसके एग्जाम्पल्स हो गए इमेजेस के। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन। कि जो हम ग्राफिक डिजाइन करते हैं वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, मतलब
So there are four crucial principle. The principle of design helps to determine how to use the design elements. जो हमारे elements हैं उनको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं या किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें, वो हमारे प्रिंसिपल के तौर पे हम, जैसे एक रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रिंसिपल मींस रूल्स एंड रेगुलेशन, हमें इस चीज को फॉलो करके ग्राफिक डिजाइन को क्रिएट करना है. दिस प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन हेल्प्स यू टू कंबाइन द वेरियस डिजाइन एलिमेंट्स इनटू अ गुड लेआउट. अलग अलग हमने वेरियस टाइप ऑफ जो हमारे एलिमेंट्स है जो हमारे साथ है उनको हम कैसे कंबाइन या फिर ऑर्गेनाइज करके एक गुड लेआउट रेडी कर सकते हैं. So there are four crucial principles of designs. First one is the balance, emphasis, rhythm, and fourth unity. So first balance. बैलेंस जो हम वर्ड से हमें पता है कि क्या होता है, नॉर्मली हम बात करें बैलेंस तो द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट, और इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक दिस अप्लाइज टू द विजुअल वेट. जो हमारा विजुअल वेट से जो हम एलिमेंट्स ले रहे हैं वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए दोनों साइड. ईच एलिमेंट ऑन अ लेआउट हैज विजुअल वेट दैट इज डिटरमाइंड बाय इट्स साइज, डार्कनेस और लाइटनेस. जो हमारा विजुअल एलिमेंट्स है उसका प्रॉपर एक साइज होगा, डार्कनेस या फिर लाइटनेस होगी या फिर थिकनेस ऑफ लाइन, जो उसकी प्रॉपर हम बैलेंसिंग कर रहे हैं बोथ साइड. या फिर हमने कोई एलिमेंट लिया तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए. ये नहीं कि आगे मैं, इसके मेन दो तरह के बैलेंसिंग होते हैं या फिर एलिमेंट, जो हम सिमेट्रिकल या असिमेट्रिकल होते हैं, जो हम बेसिक जो हम बहुत इजी जानते हैं. So there are two basic approaches to balance. The first one with the symmetrical balance, which is an arrangement of elements so that they are evenly distributed to the left and right of the corner. To equally distributed and even equally distributed on left and right of the corner. अगर हम बीच में से लाइन खींचे या फिर इक्वल उसको बांटना चाहे तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, या फिर वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली जैसे भी हम करें तो उसको प्रॉपर बैलेंसिंग होनी चाहिए. द सेकेंड इज असिमेट्रिकल बैलेंस. जो हमारा अनयूजुअल या अनलाइक ऑब्जेक्ट होगा उनकी हम, the balance which is an arrangement of unlike object of equal weights of each side of page. और जो हमारा बैलेंसिंग एलिमेंट्स जो वही हमारे जो सात एलिमेंट्स है वही हो सकते हैं जो हमारे हैं. कलर हो गया, वैल्यू, शेप्स एंड साइज एंड टेक्सचर्स कैन बी यूज्ड एज बैलेंसिंग एलिमेंट्स. जो हमारे एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन है वही हमारे एलिमेंट्स है जो बेसिकली हमें जो बैलेंस करने हैं. सिमेट्रिकल बैलेंस कैन कम्युनिकेट स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी. अगर हमारा डिजाइन सिमेट्रिकल है तो हमारे स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा. और जो हम ट्रेडिशनल पब्लिकेशन बनाएंगे, पब्लिकेशन या प्रेजेंटेशन या वेबसाइट्स होगी, ये उनके लिए है कि मतलब जो हमारे डिजाइन वो सिमेट्रिकल टू दी लेफ्ट एंड राइट होने चाहिए, मतलब बोथ साइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए. asymmetrical balance can imply contrast, variety, movement, surprise and the informality. जो हमारा asymmetrical shapes होगा वो इन चीजों को imply मतलब रिप्रेजेंट करेगा कि कॉन्ट्रास्ट हो रहा है या फिर वैरायटी है या फिर मूवमेंट या फिर सरप्राइज एंड इनफॉर्मेलिटी, मतलब कुछ अजीब सी चीज हो गई या यूनिक चीज हो गई, उसको asymmetrical बैलेंस रिप्रेजेंट करेगा. इट इज अप्रोप्रिएट फॉर मॉडर्न एंटरटेनिंग पब्लिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड वेबसाइट. जो ये हम इन चीजों में यूज करते हैं, पब्लिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड वेबसाइट. इसका एग्जांपल मैं शो कर देता हूँ. जैसे ये हमने एक पेड़ लिया, जस्ट फॉर एग्जांपल, सिमेट्रिकल मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड भी इक्वल है एंड राइट साइड भी इक्वल है. जो मैथमेटिक्स में LHS इज इक्वल टू RHS करते हैं, सिंपली वही वाली है कि सिमेट्रिकल हमारा अगर न्यूट्रल लाइन लिया हमने, न्यूट्रल एक्सिस लिया तो वो बोथ साइड इक्वल होनी चाहिए. एंड सिमेट्रिकल जैसे ये पेड़ थोड़ा लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है और राइट में अलग सी शेप है तो ये हमारा असिमेट्रिकल बैलेंस हुआ, या फिर शेप कह सकते हैं असिमेट्रिकल शेप. टू क्रिएट बैलेंस, बैलेंसिंग करने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं या फिर क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है. रिपीट अ स्पेसिफिक शेप एट रेगुलर इंटरवल्स आइदर हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. जो हमने स्पेस लिया है, शेप लिया है, वो हमें रेगुलर इंटरवल्स पे हमें रिपीट करनी है या फिर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली वो करे, रिपीट करे. सेंटर एलिमेंट्स ऑन अ पेज. जो हमने बेसिक एलिमेंट से स्टार्ट इन द स्टार्टिंग ऑफ डिजाइन हमने एक एलिमेंट ले लिया जिसको हम सेंटर में पॉइंट आउट कर दिया, तो बैलेंसिंग के लिए कि लेफ्ट और राइट साइड इक्वल होनी चाहिए. और जो हमारा ये रहता है इसमें बैलेंसिंग के लिए हमें इसमें ग्रिड लाइंस पहले से प्रोवाइडेड रहती है, जो हम उसमें हम यूज कर सकते हैं स्केलिंग के लिए. टू पुट सेवरल विजुअल्स इन वन एरिया टू बैलेंस अ सिंगल लार्ज इमेज और ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट.
हमें छोटे छोटे कुछ चीजों को उठा के हमें प्रॉपर बैलेंसिंग करने का, लेफ्ट साइड ज्यादा कंटेंट हो रहा है या फिर राइट साइड हमारा ज्यादा कंटेंट हो रहा है, बैलेंसिंग के लिए हमने छोटे छोटे इमेजेस हो गए या फिर शेप्स हो गए, कलर्स हो गए, टू डिजाइन द to design the वो and balance the design. यूज वन और टू ऑड शेप्स एंड मेक द रेस्ट रेगुलर शेप। हमने एक या दो कुछ अजीब से शेप ले लिए तो बैलेंस करने के लिए जो रेगुलर शेप्स है, मतलब लेफ्ट साइड में हमारे अगर 10 शेप्स है और राइट साइड पे 8 है, इक्वली जो हमारा सेम शेप्स है, लेकिन उसे बैलेंस करने के लिए हमने राइट साइड पर 2 और ऐड कर दिया तो दोनों साइड 10-10 हो गए। तो बैलेंसिंग के लिए कि हमारा लुक वाइज अच्छा लगे, ये नहीं कि लेफ्ट साइड पर सारा कंटेंट हो गया और राइट साइड हमारा बिल्कुल खाली है। टू लाइटन अ टेक्स्ट हैवी पीस विद अ ब्राइट कलर विजुअल, जो हमारा टेक्स्ट होगा हम उसको ज्यादा लाइट नहीं रखना है या फिर ज्यादा ब्राइट नहीं रखना है, प्रॉपर हमें बैलेंसिंग करनी है। लीव प्लेंटी ऑफ वाइट स्पेस अराउंड लार्ज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। प्लेंटी का मीन्स होता है, इट मीन्स मैनी और मोर देन इनफ, जो हमें एक से ज्यादा अगर चीजें हैं तो उनको बैलेंसिंग के लिए, या फिर वाइट स्पेस अगर बहुत ज्यादा वाइटिश एरिया है तो उसको बैलेंस करने के लिए उसमें हमने कुछ फिल कर दिया, कुछ एलिमेंट्स ले लिए, कुछ इमेजेस ले लिए, शेप्स ले लिए, तो डाल दे फोटोग्राफ्स। जैसे ये रहा, हमने एक क्रिएटिव एग्जांपल लिया है, तो प्रॉपर बैलेंसिंग हो रही है, लेफ्ट साइड भी इक्वल है, राइट साइड भी इक्वल है, बस फर्क हमने कलर का दिया हुआ, कलर वो हमारे हाथ में कंट्रोल करना। अगर सेंट्रल न्यूट्रल एक्सिस से देखे, जो हमारी ये वाली लाइन न्यूट्रल एक्सिस है, वो प्रॉपर राइट और लेफ्ट साइड में सेम चीजें हैं या फिर सेम डिजाइन है, प्रॉपर बैलेंसिंग है। सो सेकंड वुड बी एम्फोसिस। एम्फेसिस व्हाट स्टैंड्स आउट और गेट नोटिस फर्स्ट। एम्फेसिस का मतलब ये होता है कि अगर कोई डिजाइन है तो उसमें हम सबसे पहले क्या चीज नोटिस कर रहे हैं, वो चीज को हम एम्फेसिस कहते हैं। या फिर इट कैन बी डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ द डिजाइन दैट कैचेस द व्यूअर अटेंशन फर्स्ट, जो व्यूअर की अटेंशन को पहले कैच कर रहा है। एंड it also it is used to draw the eye of reader to specific elements। अगर रीडर कोई देख रहा है या फिर पढ़ रहा है या फिर उसको ऑब्जर्व कर रहा है तो उसकी आईज पहले कहाँ कैच हो रही है, इसको भी एम्फोसिस कह सकते हैं। एवरी लेआउट मेक्स अ फोकल पॉइंट टू ड्रॉ द रीडर्स आई टू इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लेआउट। सिंपल जो अभी मैंने बताया कि जो रीडर्स है उसका जो आई है फर्स्ट पहले कहाँ कैच कर रहा है, मतलब किस पॉइंट पे जाके वो नोटिस कर रहा है, किस चीज को पहले नोटिस कर रहा है। टू मैनी फोकल पॉइंट्स, दिस इज द पर्पस। अगर हमें ये ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा हम चीजें को ऐड कर सकते हैं कि जो हमारा मेन जो एलिमेंट्स है वो व्यूअर्स को दिखे, उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा में चीजें ऐड करनी है, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है या फिर चीजें या फिर ड्राइंग्स हो गया, वर्ड्स हो गया, वर्डिंग हो गई, टाइपिंग हो गई, वो ज्यादा से ज्यादा हो कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन व्यूअर को मिले, ये नहीं कि सिर्फ एक चीज उसको मिल रहा है। जनरली a focal point is created when one element is different from the rest। वही बात हो गई, जो अलग सी चीज हो रही है वो व्यूअर को पहले आई कैच होगी, उसको अटेंशन प्रोवाइड करेगी। सिंपल जैसे अगर इसका एग्जांपल दूं मैं, हमने पहले किसी का भी जाएगा तो रेड वाले पे ज्यादा फोकस जाएगा क्योंकि सारी चीजें नॉर्मल है, सारे बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन रेड इसमें यूनिक है, तो कोई भी यूनिक चीज को हम नोटिस कर सकते हैं, मतलब कोई भी व्यूवर्स है या रीडर्स है वो यूनिक चीज को नोटिस करेगा, तो इस चीज को हम एम्फोसिस कह सकते हैं, जो हमें नोटिस पहले हो रहा है। अगर कोई डिजाइन है उसके अंदर हम क्या चीज पहले देख रहे हैं या कुछ देख पा रहे हैं, जैसे ये एक डिजाइन हो गया, तो ये सारी चीजें एक जैसी, लेकिन ये ब्लैक ब्लैक जो बटन है या फिर शेप्स के हैं ये हम नोटिस कर पा रहे हैं पहले, ये इनसे इसको यूनिक बना रही है इस डिजाइन से। टू क्रिएट एम्फोसिस, मतलब एम्फोसिस को बनाने के लिए या फिर यूनिकनेस लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। यूज अ सीरीज ऑफ ह्यूमनली स्पेस स्क्वायर फोटोग्राफ्स कनेक्ट टू एन, जो हम एक हमारा फोटोग्राफ है उसको हम किस तरीके से ऐड करें जो हमें पहले से अवेलेबल है उसके शेप में। अगर जो हमारे पहले से कुछ इमेज ऑलरेडी है डिजाइन पे और हमें एक और ऐड करना है, तो अगर हम उसमें अलग अलग शेप दे देते हैं या अलग कलर दे देते वो पहले नोटिस होगा। इंपॉर्टेंट पीस ऑफ टेक्स्ट ऑन अ कर्व और एंगल व्हाइल कीपिंग, वही कि हम टेक्स्ट यूज कर रहे हैं वो यूनिक होने चाहिए, अलग फॉन्ट के होने चाहिए, अलग हमने एंगल पे कर्व कर दिया। यूज बोल्ड ब्लैक टाइप फॉर हेडिंग
एंड सब हेड्स एंड मच लाइटर। जो हम हेडिंग्स ले रहे हैं उसको हमने बोल्ड कर दिया, फिर बड़े फ़ॉन्ट्स है जो बिग साइज के फ़ॉन्ट्स है हमने उसका यूज़ कर दिया हेडिंग के लिए, या फिर हमने उसकी फ़ॉन्ट साइज ही बढ़ा दी और उसको हमने बोल्ड कर दिया, तो वो जाहिर सी बात है फर्स्ट नोटिस होगा। फिर सब हेडिंग्स को हमने थोड़ा सा लाइटर रखा और जो रेस्ट ऑफ दी हमारा कंटेंट है उसको हमने नॉर्मल रखा जो लाइट कलर का है। प्लेस अ लार्ज पिक्चर नेक्स्ट हुआ, सबसे आगे हमने बड़ा पिक्चर लगाया, फिर उसके पीछे छोटा, फिर छोटा करके डिजाइन क्रिएट किया। रिवर्स अ हेडलाइन आउट ऑफ ब्लैक और कलर्ड बॉक्स विद वाइट टाइप। जो हम हेडलाइंस कर रहे हैं उसके हम अगर हमें नोटिस कराना है तो ब्लैक और कलर रेड कलर का यूज करके हम नोटिस करा सकते हैं इन कंपैरिजन ऑफ वाइट। वाइट चीज किसी को भी अगर करना है उसके अंदर, जैसे हमने डिजाइन बनाया, जैसे इसमें बैकग्राउंड हमारा वाइट है लेकिन इस पे ध्यान किसी का भी नहीं जा रहा, नॉर्मल जो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ये वो पर्पल कलर का है या फिर मिक्स पर्पल और रेड कलर है वो नोटिस हो रहा है। फिर बाकी जो मेन हमारा हेडिंग्स है इसको हमने कलर ही दे दिया, बोल्ड कर दिया, टू अंडरलाइन कर दिया। ये हमारा हेडिंग्स हो गया। जैसे फिर सब हेडिंग से कंटेंट्स हो गए, ये नॉर्मली हमने ब्लैक से रिप्रेजेंट कर लिया, फिर नॉर्मल फॉन्ट यूज कर दिया। व्हाट लिस्ट यू वांट टू हाईलाइट इन द स्लाइड बार और शेडो बॉक्स। और चीज ये है कि अगर हमें हाईलाइट करनी है तो उसको हम शेड कर सकते हैं या फिर साइड बार में कुछ शेप देके उसको साइड में रख सकते हैं, या फिर एरिया को ही हाईलाइट कर देते हैं शेडेड एरिया करके। जैसे ये रहा एक एग्जांपल, ये अम्ब्रेला का एग्जांपल है, तो बहुत सारे ब्लैक अम्ब्रेला और एक हमने यूनिक इसमें ऑरेंज कलर का अम्ब्रेला डाल दिया, तो ये एम्फेसिस का एग्जांपल है टू शो दी यूनिकनेस कि कुछ उसमें यूनिक चीज क्या हो रही है एक डिजाइन में। रिदम, रिदम इज अ पैटर्न क्रिएटेड बाय रिपीटिंग एलिमेंट्स दैट आर वेराइड। रिपीटिंग एलिमेंट्स को क्रिएट करके जो अलग अलग है लेकिन रिपीट हो रही है उसको हम रिदम कह सकते हैं, या फिर इन अदर वर्ड्स इट इज एन आर्ट एंड डिजाइन दैट रेफर्स टू अ रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स that creates a sense of harmony, and it refers to a relation between elements in the piece and also how they interact together. And repetition and the variation are the keys to visual rhythm. Placing elements in a layout at regular intervals create a smooth and even rhythm and calm relaxing mood। जो हमारा प्रॉपर रेगुलर साइज है, जो लेआउट्स है उसके अंदर के जो एलिमेंट्स है हम उसी को यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ हल्का हल्का सा चेंजेस हो रहा है, थोड़े अलग शेप्स के है, कलर्स के है, या फिर प्रॉपर इंटरवल हो रहा है, मतलब जो इनके दो के बीच का गैप है वो इक्वल है, लेकिन चीजें अलग हो रही है और सेम चीज वो रिपीट होती जा रही है, उसको हम रिदम कह सकते हैं। It can be used to show the calm, relaxing mood. Sudden changes in the size and the spacing of elements create a fast, lively rhythm and an exciting mood. हल्की हल्की चीजें चेंजेस करें या फिर साइज में चेंज कर दिया हमने, स्पेसिंग में चेंज कर दी या फिर कलर में चेंज कर रहे हैं हल्का हल्का, तो ज्यादा नोटिस नहीं होगा और ये प्रॉपर रिदम को फॉलो करेगा और ये शो करेगा एक्साइटमेंट को, एक्साइटिंग मूड को। और रिदम इन सिंपल वर्ड्स अगर अदर उस लैंग्वेज में या फिर अदर वर्ड्स में बात करें तो वी कैन ऑल्सो से इट इज अ रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स दैट आर वेराइटी। अलग अलग चीजों का, अलग अलग एलिमेंट्स का रिपीटिंग हो रहा है, रिपीटिंग हो रही है, रिपीटिंग ऑफ एलिमेंट्स दैट आर वेराइड ऑलरेडी। का सिंपल सा एग्जांपल ये रहा, जैसे कि कुछ वेव्स का है, म्यूजिक के वेव्स कह सकते हैं या फिर कुछ भी हो, डिजाइन ही कह सकते हैं। जैसे है तो ये ब्लैक कलर का एक ही शेप है, लेकिन इसके साइज हल्के हल्के से चेंजेस हो रहे हैं और फिर इसका रिवर्स करके हमने हल्के हल्के से साइज को बड़ा कर दिया। ये रिदम का एग्जांपल है सिंपल, यहाँ पे भी ये सारी चीजें हैं लेकिन इसके हल्के हल्के थोड़ी सी डिजाइन में चेंजेस है, जो प्रॉपर लोकेशन है वो चेंजेस है, तो ये भी हमारा रिदम का एग्जांपल है। टू क्रिएट रिदम, हम रिदम को डिजाइन में कैसे क्रिएट कर सकते हैं? हाउ डू वी क्रिएट रिदम इन आवर डिजाइन? रिपीट अ सीरीज ऑफ सिमिलरली शेप एलिमेंट्स विद इवन आउट वाइट स्पेसेस बिटवीन ईच टू क्रिएट अ रेगुलर रिदम। जैसे मैंने ब्लैक एंड व्हाइट वाला एग्जांपल दिया, उनके बीच में प्रॉपर स्पेसिंग हो रही है या फिर जो रेगुलर इंटरवल्स पे मूव कर रहे हैं आगे की तरफ, वो चीज हो गई। रिपीट द सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिवली लार्ज एलिमेंट्स विद लार्जर व्हाइट स्पेसेस बिटवीन दी। ये टाइप इसमें दो या तीन तरीके के रिदम टाइप्स होती है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब जानकारी होनी चाहिए,
इसका एग्जांपल होते हैं हम रेगुलर रिदम होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं और रैंडम होते हैं। तो फर्स्ट अगर हम वो सिमिलरली शेप एलिमेंट है और वाइट स्पेस के साथ में प्रॉपर डिस्टेंस के साथ है तो उसको हम रेगुलर वो कहेंगे, रेगुलर रिदम करेंगे जिसका शेप भी अलग है और साइज भी सेम है और बीच में प्रॉपर डिस्टेंस या फिर इंटरवल के साथ वो मूव कर रही है तो वो रेगुलर रिदम हो गई। प्रोग्रेसिव मतलब छोटे से बड़े की ओर बढ़ रही है जो डिजाइन हमारा है, प्रोग्रेसिव लार्जर एलिमेंट विद लार्जर वाइट स्पेसेस। हमारा जो दूसरे वाला था वो अल्टरनेट डार्क बोल्ड टाइप एंड लाइट थिन टाइप, जो हम इसका यूज कर सकते हैं डार्क का या बोल्ड टाइप का, फिर लाइट या थिन टाइप का। अल्टरनेट डार्क पेजेस मतलब विद लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ डार्क ग्राफिक्स। हम डार्क को लाइट ग्राफिक्स के साथ में ऐड करके हम प्रॉपर रिदम या फिर प्रॉपर पाथ क्रिएट कर सकते हैं टू शो द रिदम। रिपीट अ सिमिलर शेप इन वेरियस एरियाज ऑफ अ लेआउट। जो शेप्स है, जो हमारे एलिमेंट्स की शेप्स है वो सिमिलर होनी चाहिए और टू क्रिएट इन अ लेआउट, जो हमारा लेआउट के अंदर है वो शेप्स हमारे सिमिलर होनी चाहिए। रिपीट द सेम एलिमेंट्स इन द सेम पोजीशन ऑन एवरी पेज। जो हमारा एलिमेंट के एग्जैक्ट पोजीशन है नेक्स्ट भी एलिमेंट की सेम पोजीशन होनी चाहिए इन प्रिंटेड पब्लिकेशन, जो हम न्यूज लेटर में फॉलो करते हैं। तो चौथा प्रिंसिपल, जो फोर्थ वन प्रिंसिपल वुड बी यूनिटी, सिंपल यूनिटी टू कंबाइन द ऑल टुगेदर, जो हम नॉर्मल भी कहते हैं टू यूनाइट द पीपल। यूनिटी हेल्प्स ऑल द एलिमेंट्स लुक लाइक दे बिलोंग टुगेदर। अगर कि जो एलिमेंट्स है वो सेम है, देखने में लुक वाइज सेम है, साइज सेम है, तो उनको अगर एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके हम बड़ा मैसेज क्रिएट कर रहे हैं, तो वो यूनिटी का एग्जांपल हो गया। रीडर्स नीड विजुअल क्यूज टू लेट देम नो द पीस इज वन यूनिट। रीडर्स को ये मालूम चलना कि जो अलग अलग चीज है वो सारी चीज मिला के एक यूनिट बना रही है, मतलब एक ही डिजाइन का ये हिस्सा है, चाहे वो टेक्स्ट हो, हेडलाइंस हो, या उसके अंदर के फोटोग्राफ्स हो, ग्राफिक इमेजेस हो या कैप्शंस हो, सारी चीजें मिला के हमारा एक प्रॉपर क्रिएटिव को डिजाइन कर रही है। यूनिफाई एलिमेंट्स बाय ग्रुपिंग एलिमेंट्स दैट आर क्लोज टुगेदर सो दैट दे लुक लाइक दे बिलोंग टुगेदर। जो एलिमेंट्स है उनको हम नजदीक ला रहे हैं, पास में ला रहे हैं, कि टू शो दैट दे ऑल आर टुगेदर। रिपीट कलर शेप एंड टेक्सचर, यूज अ ग्रिड लाइंस, जो मैंने उसका भी पहले भी बताया था, ग्रिड लाइंस की होती है जो हम स्केलिंग के लिए यूज करते हैं, कि जो हमारा शेप है उसको हम 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं प्रॉपर स्केलिंग के लिए, कि हमें एलिमेंट जो जहाँ फिक्स करनी है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें मिल सके। और सिंपल वर्ड से हम यूनिटी को कह सकते हैं, यूनिटी इज द प्रिंसिपल दैट पुल्स टुगेदर ऑल द अदर एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, एंड इट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन that unifies all the other principle within the piece of work। हम अलग अलग एलिमेंट्स को यूज करके एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं या फिर सिंगल पीस ऑफ क्रिएटिव बना रहे हैं। उसके लिए हम ग्रेड लाइंस का यूज करते हैं, जो द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ अ पेज टू एस्टैब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर मार्जिन, कॉलम्स, स्पेसिंग एंड प्रोपोर्शन। जैसे ये रहा, ये मैंने दो वेबसाइट का जो लैंड पेज होते हैं वो मैंने यूज किया। जो हम कोई भी वेबसाइट को खोलते हैं तो फर्स्ट पेज हमारा क्या आता है, जैसे ये मैंने दो ई कॉमर्स वेबसाइट का यूज किया है। जैसे हमारा ये अमेजोन का है तो इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स है, जहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी इन्होंने मेंस फैशंस का बना दिया, सेकंड स्मार्टफोन्स का है, थर्ड लेटेस्ट अपकमिंग लॉन्चेस का है, या फिर इन्होंने एक एडवर्टीजमेंट भी इसमें क्रिएट कर दी जो इसका इनका नया फोन आया हुआ उनका। तो मतलब है तो सारी चीजें अलग अलग, लेकिन इनको क्रिएट करके सिंगल सिंगल प्रोडक्ट बना रखा है। जो सिंगल हमारा लैंड पेज है उसको क्रिएट कर रखा है, डिफरेंट डिजाइन का यूज करके इन्होंने सिंगल सिंगल डिजाइन या फिर सिंगल जो हमारा प्रोडक्ट है उन्हें बना रखा है। मतलब है तो ये अलग अलग, लेकिन इनको एक साथ कंबाइन करके एक प्रॉपर मैसेज क्रिएट कर रहे हैं। टू क्रिएट यूनिटी यूज यूनिटी करने के लिए टू यूज ओनली वन और टू टाइप्स ऑफ स्टाइल्स, हम एक या दो तरीके के फॉन्ट्स को यूज करेंगे, और साइज साइज भी नॉर्मल रखेंगे, मतलब सारी साइज मैच होनी चाहिए, नहीं कि एक का फॉन्ट साइज 80 रख दिया, एक 20 रख लिया, एक 50 रख दिया। बी कंसिस्टेंट विद द टाइप फॉन्ट साइज, वही बताया मैंने कि जो फॉन्ट हम यूज कर रहे हैं उनकी प्रॉपर साइज होनी चाहिए टाइपिंग की, या फिर फॉन्ट का स्टाइल्स होना चाहिए सेम। हेडिंग, सब हेडिंग्स, कैप्शंस, हेडर्स के, ये नहीं कि हम अलग अलग डिजाइन यूज कर रहे हैं, फॉन्ट्स यूज कर रहे हैं सारी चीजें के लिए थ्रू आउट द पब्लिकेशन।
जो हमारा प्रॉपर पब्लिकेशन या प्रेजेंटेशन है उनको क्रिएट करने के लिए अलग अलग चीज़ें का यूज़ नहीं करना है हमें। यूज़ द सेम कलर पैलेट थ्रू आउट, जो हम प्रॉपर हमारी जो लेआउट है या फिर पूरा हमारा जो डिज़ाइन है उसमें अलग अलग चीज़ों का यूज़ नहीं करना, अलग अलग कलर्स का यूज़ नहीं करना, सारे को मतलब मिक्स करके हमने रंगोली बना दी, वो चीज़ नहीं करनी है। रिपीट अ कलर शेप और टेक्सचर इन डिफरेंट एरियाज थ्रू आउट, जो हमने पहले कलर दिया है सेम। रिपीट अ कलर शेप और टेक्सचर इन डिफरेंट एरियाज थ्रू आउट, जो हमने पहले कलर या फिर शेप या टेक्सचर यूज किया उसको हम आगे भी फर्दर यूज करेंगे। चूज visuals that shares a similar color theme or shapes, line up photographs and text with the same grid line. So a grid line is the underlying structure of the layout. जैसे ये रहा, ये हमने इसमें ग्रेड, जैसे ये एक पोस्टर है या फिर एक मीम ही कह सकते हैं, इन्होंने मीम बना रखा है तो इसमें इन्होंने ग्रेड लाइंस का यूज किया है। ऐसे पूरी चीज को इन्होंने 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है टू शो द ग्रेड लाइंस। ये रहा एक प्रॉपर फ्रेम को इन्होंने, तो जो ये कटआउट्स है इनको हम ग्रिड लाइंस कहते हैं कि जो हमारी प्रॉपर लेआउट को इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, इक्वल पार्ट्स के सेम साइज के। जैसे अगर ये वाला इनका पार्ट है तो वो इनके सब सबके इक्वल होगा, ये नहीं कि सारे अलग अलग साइज के होंगे। तो हमारा ये आज का लास्ट है स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ग्राफिक डिजाइन प्रोसेस। जो हम प्रोसेस, जो हमारा पूरा ग्राफिक डिजाइनिंग हम कर रहे हैं तो हम उसके अंदर स्टेप्स क्या क्या हमें करना है। हम डिजाइनिंग तो कर देंगे, ये नहीं कि कैसे भी करके डिजाइन बना दिया फेंक दिया इधर उधर, वो चीज नहीं करनी है। उसका प्रॉपर स्टेप्स होता है, स्टेप्स इन्वॉल्व द ग्राफिक डिजाइन प्रोसेस। फर्स्ट में एनालाइज द ऑडियंस। हमें फर्स्ट हमें जो हमारा टारगेट ऑडियंस है उन्हें हमें देखना है कि ऑडियंस को क्या चाहिए, उनको किस चीज में इंटरेस्ट है। डिटरमाइन द पर्पस, देन डिटरमाइन द पर्पस ऑफ योर मैसेज। जो हम क्रिएटिव बना रहे हैं वो किस, उसका पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडियंस की नीड क्या है, उसको उस पर डिपेंड करेगा। देन डिसाइड वेयर एंड हाउ टू मैसेज विल अपीयर एंड वेयर टू बी। जो हमारा प्रॉपर मैसेज या फिर टेक्सटिंग यूज कर रहे हैं एक पब्लिकेशन में, डिजाइनिंग में, वो हम कहाँ कहाँ, उनकी लोकेशन क्या है या फिर हम में लिखना क्या है, वो चीज़ हमें सोचना है और कम से कम वर्ड्स में होनी चाहिए। एस्टैब्लिश गोल्स, हमें गोल्स क्रिएट करने हैं कि हमने इस डिज़ाइन से हमने इतने का टारगेट किया कि अगर कोई भी कंपनी है उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट क्रिएट किया तो उनके पास एक एडवर्टीजमेंट से कितने नए मेंबर्स आ रहे हैं, कितने नए कस्टमर्स आ रहे हैं उनके पास। ऑर्गेनाइज टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, जो हमारा टेक्स्ट है या ग्राफिक्स है, जो एलिमेंट्स है उनको किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना चाहिए। चूज एन अप्रोप्रिएट फॉर्मेट एंड लेआउट। जो उसका फॉर्मेट और लेआउट है उसको हमें पहले चूज करना चाहिए, उसकी साइज क्या है लेआउट की वो हमें देखना है। लेआउट हम किस तरीके से रखेंगे, वर्टिकली रखेंगे, हॉरिजॉन्टली रखेंगे, वो देखना है, वो चूज करना है। सिलेक्ट अप्रोप्रिएट टाइप फेसेस, टाइप फेसेस, टाइप साइज एंड टाइप स्टाइल्स एंड स्पेसिंग। जो हम फॉन्ट यूज कर रहे हैं वो कौन सा फॉन्ट यूज कर रहे हैं, फॉन्ट का साइज क्या है, स्टाइल्स क्या है, या फिर उनके बीच में वर्ड स्पेसिंग कितनी है, वो चीज देखनी है। एड ए मैनिपुलेट ग्राफिक्स। जो ग्राफिक्स है उन्हें ऐड करना और मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट का मतलब टू यूज और मूव टू कंट्रोल। जो सारे ग्राफिक को एक साथ कंट्रोल करना है हमें, मतलब कंबाइन करना है, कंट्रोल करना है। ऑर्गेनाइज टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, जो हमने ऐड किया उन्हें हमें प्रॉपर टेक्सटिंग और ग्राफिक्स में के द्वारा हमें ऑर्गेनाइज करना है। ये नहीं कि सारी चीजें बिखरी हुई नजर नहीं आनी चाहिए हमें टेक्स्ट और ग्राफिक्स को। प्रूफ रेड, प्रूफ रेड इसका मतलब होता है टू रीड एंड मार्क एनी एरर। जो हम उसके अंदर जो हमने लेआउट तो बना दिया, हमारा लेआउट रेडी भी हो गया, तो हमें उसके अंदर देखना है कि क्या चीजें अलग हो रही है या फिर उसके अंदर एरर्स क्या आ रहे हैं, वो चीज करनी है। उसको प्रूफ राइड कर कहते हैं। एंड रिफाइंड एंड द फाइन ट्यून। रिफाइन मतलब उसको जो हम चीजें हमारी गलत है एरर्स को कट आउट करके प्रॉपर क्रिएट करना है, मतलब जो हमें सही चीजें करनी है, जो हमारी एरर्स है उन्हें मैनिपुलेट करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। रिफाइनिंग का ये हो गया, तब जाके हमारा प्रॉपर जो हमारा क्रिएटिव या डिजाइन है वो हमारा बन के रेडी होगा। जो प्रॉपर उसमें प्रिंसिपल्स को फॉलो करने हैं, स्टेप्स को फॉलो करने हैं, या फिर जो 7 एलिमेंट्स है उनकी ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। जैसे
ये वाला, जैसे ये भी एक एडवर्टीजमेंट का ही पार्ट है जो आजकल में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। सिंपल ये भी एक हमारा डिजाइनिंग का ही पार्ट है, या फिर जो हमने एडवर्टीजमेंट क्रिएट किया ब्लिंकिट वालों का था ये। दूध मांगोगे दूध देंगे, ब्लिंकिट का था। फिर इस पे नेक्स्ट आया जोमेटो का, खीर मांगोगे खीर देंगे। और ये हमारे कंपनी का इस इन्होंने बना रखा था, हमने बनाया मार्केटिंग मांगोगे ब्रांड बना देंगे। ये भी जो हम क्रिएटिंग कर रहे हैं क्रिएटिव्स है, मतलब व्यूवर्स को अटेंशन प्रोवाइड करने के लिए। जैसे ये वाला बहुत ज्यादा वायरल हुआ है हाल फिलहाल में। तो इस तरीके से हमें डिजाइन क्रिएट करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब अपने डाउट्स बता सकते हैं जो अगर किसी को डाउट्स है तो। व्हाट इज एम्फोसिस? एम्फोसिस सिंपली डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ डिजाइन, कैन बी डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ डिजाइन दैट कैचेस द व्यूअर अटेंशन फर्स्ट। जो हम डिजाइन है उसके अंदर हम व्यूअर्स है वो क्या चीज पहले नोटिस कर रहा है उसको हम एम्फोसिस कहते हैं। एंड इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज इट इज यूज टू ड्रॉ आई ऑफ द रीडर्स स्पेसिफिक एरिया। जो हम आंखों का, अगर व्यूअर है वो फर्स्ट चीज नोटिस क्या कर रहा है डिजाइन के अंदर में, उसे हम एम्फोसिस कहते हैं। Yes, exactly. Emphasis is the part of design that catches the viewer attention. Usually the artist will one area to stand control. Area would be color shaping. बिल्कुल एग्जैक्ट। व्हाट इज टारगेट ऑडियंस? जैसे टारगेट ऑडियंस वो होता है कि अगर हम कोई भी एडवर्टीजमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो वो किन के पास पहुंचना चाहिए। अगर जोमेटो वाले ऐड कर रहे हैं तो उनका ऑडियंस वो किस तरीके के ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं कि जहां से उनको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर मिल सके। ये नहीं कि अगर जो थर्ड क्लास वाले वो कर रहे हैं कि जिनको नीड ही नहीं है बाहर के खाने की, उनके पास एडवर्टीजमेंट ज्यादा पहुंच रहा है या वो उनके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा पहुंच रहा है, तो वो तो नहीं लेंगे। तो ये लोग फर्स्ट जो कैटेगरी वाइज है या फिर जो ज्यादा खाने के पे खर्च करने वाले इंसान है, ये लोग हैं, उनके पास ज्यादा एडवर्टीजमेंट को ज्यादा पहुंचाने का इनका ऑब्जेक्टिव रहता है। तो वो हमारा टारगेट ऑडियंस रहता है जहां से हमें ज्यादा आउटपुट मिल सके, उसे हम टारगेट ऑडियंस कहते हैं। एनी अदर डाउट्स? व्हाट इज रिदम? रिदम, रिदम वो है जैसे सिंपल इसका डेफिनेशन हो गया, इट इज एन आर्ट एंड डिजाइन दैट रेफर्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू एलिमेंट्स that creates a harmony and it relation between the elements or a piece of, उसे हम रिदम कहते हैं कि जो दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट्स है उनके बीच का रिलेशन कैसे है, उनको हम आपस में यूज कैसे कर रहे हैं, वो है, उसे हम रिदम कहते हैं। या फिर लुक वाइज दोनों को ऑर्गेनाइज कर दिया या फिर इंटरेक्ट करके एक साथ हमने चीजें कर दी, तो वो लुक वाइज कैसे लग रही है रिदम को। जैसे मैंने ब्लैक एंड व्हाइट वाले का एग्जांपल दिया था, सिंपल ये रहा कि जैसे इसमें हमने डिफरेंट चीजें यूज की। मोहित कटारिया, व्हाट इज द बेस्ट एंड इजी सॉफ्टवेयर फॉर डिजाइन? जो हमारे ये नेक्स्ट पार्ट में हम, नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम करेंगे जो इसका। अगर फ्री की बात करें, जो फ्री वर्जन है तो वो हम मोस्टली जो डिजाइनर्स है वो कैनवा यूज कर रहे हैं आजकल, जो फ्री प्रोडक्ट है हमारा, फ्री सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के लिए। या फिर पेड की बात करें तो अडोबी की बहुत सारी है, इलस्ट्रेटर है, वो यूज कर रहे हैं। अडोबी इलस्ट्रेटर सबसे ज्यादा यूज हो रहा है आजकल, लेकिन वो पेड है। व्हाट इज द बेस्ट एंड इजी सॉफ्टवेयर फॉर डिजाइन? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो हमारा अगला सेशन होगा परसों, दैट इज 21 ऑफ जैन।